studied the introduction of different kind of stresses in our previous lectures. Today we are going to study about the bending stress and shear stress acting in a beam. In today's lecture, what is the outcome of this lecture? First, we are going to study about the theory of simple and or pure bending stress which is produced. Second, the list of assumptions underlying bending theory, to which assumptions should be taken during the bending stress acting on a beam. Third, the derivation derive the relation between bending stress and radius of curvature and bending moment and radius of curvature. Means whenever the bending stress is acting on a beam, then some curve is taken place in a beam. Means beam is going to be bent, so the bending part create a radius, right? Means why? Because the bending portion creates some kind of a circle which has a radius, so that radius of the bending part is called as the radius of curvature, and we have to derive the relation between the bending stress and radius of curvature and bending moment and radius of curvature. Or using both the equation, we should have to calculate bending stress and other beam parameter. So first, stresses in beam. There are mainly two stress is produced in beam is bending stress, and second one is the shear stress. If a specific length of a beam is subjected to a constant bending moment and shear force is zero, then the stress set up in that length of the beam are known as the bending stress. Right? Means whenever the load is acting perpendicular to the surface, right? Means suppose here it is a beam, right? This is the beam. Whenever I produce the load perpendicular to its beam or perpendicular to its surface, then what happen? Then the stress which is produced is the bending stress. Why? Because here at point A and point B there are two supports are given, right? यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? दो सपोर्ट दिए हुए हैं. अब दो सपोर्ट दिए हुए हैं तो यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे दोनों एंड पे, तो क्या होगा कि इस पोर्शन पे रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा. अब रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? आपका जो बीम है वो थोड़ा सा ऐसे बेंड होगा. बीम क्या होगा? बेंड होगा. अब यहाँ पे बेंड होगा तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगी, और बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है. बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है. लेकिन अगर सपोज आप ये समझ लो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, और सपोज यहाँ पे कोई एक ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है, या तो फिर इंक्लिनेशन एंगल पर आपको फोर्स अप्लाई हो रहा है. सपोज इस एंगल पे आपका फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा कि सिर्फ परपेंडिकुलर मतलब कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा? शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द बीम, राइट? दो तब आपका क्या होगा? बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा और शियर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा. लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर स्ट्रेस ही परपेंडिकुलर फोर्स ही प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स प्रोड्यूस होने की वजह से जो शियर फोर्स था वो शियर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और बेंडिंग स्ट्रेस ही प्रोड्यूस होगा. सो द लेंथ ऑफ द बीम अंडर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, मतलब कि सिर्फ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट पर ही है, तो उसको हम बोलेंगे प्योर बेंडिंग स्ट्रेस. उसको क्या बोलेंगे हम? प्योर बेंडिंग स्ट्रेस. अब इंटरनल बेंडिंग मोमेंट कॉज द बीम टू डिफॉर्म, राइट? Top fibers in compression and bottom fiber is in the tension, right? Means whenever the force is produced and when this beam is going to be bent, मतलब कि इस तरीके से अगर सपोज बीम बेंड होता है तो ये जो टॉप फाइबर है, ठीक है, ये वाला फाइबर मतलब कि टॉप सरफेस ऑफ द बीम इज इन अंडर कॉम्प्रेशन. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कंप्रेस्ड हो रहा है. वो क्या हो रहा है? कंप्रेस्ड हो रहा है. जबकि बाहर की सरफेस है, आउटर सरफेस, ठीक है, जबकि बीम की जो आउटर सरफेस है ये इनर सरफेस इज कॉम्प्रेस्ड, बट जो आउटर सरफेस है वो क्या हो रहा है? वो
एलोंगेट होगा, वो क्या होगा, एलोंगेट होगा। सो वहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब कि टेंशन में होगा वो, ठीक है। अब नेचुरल सरफेस, सॉरी न्यूट्रल सरफेस, नो चेंज इन लेंथ। न्यूट्रल सरफेस में क्या होगा, नो चेंज इन लेंथ, मतलब कि जो एक्सिस होगी बीम की, जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, वो सेंट्रोइडल एक्सिस की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। ऑल क्रॉस सेक्शंस रिमेन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। स्ट्रेसेस इन बीम, यहाँ पे आपको दो तीन एक्सिस दी हुई है, एक आपकी एक्सिस सिमेट्रिक है, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और तीसरी है न्यूट्रल सरफेसेस, राइट। अब न्यूट्रल सरफेस जो होगा वहाँ पे आपकी जो लेंथ है, जो सेंट्रल एक्सिस है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट। अब अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पैरेलल अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है बीम के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है, तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। Assumption, which kind of assumptions is going to be taken for the pure bending stress theory? First is the material of beam is homogeneous and isotropic, right? When the material of beam is homogeneous and isotropic, मतलब कि जो भी आप बीम ले रहे हो उसका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस होना चाहिए, कि हर एक पार्ट से सेम मॉलिक्यूलर्स होने चाहिए, उसकी मॉलिक्यूलर्स की जो जगह मॉलिक्यूलर्स जहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब कि आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एग्जांपल मैं देता हूँ कि हर एक सेल में एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं, क्लियर। Young modulus is constant in compression and tension. Young modulus always should be constant whenever the compression stress is produced or compression is going to be take place and tension is going to be taken place. Then the young modulus should be constant for both condition. Transverse transverse section which are plane before bending remain plane after बेंडिंग, राइट। मतलब कि ट्रांसवर्स सेक्शन जो भी होगा, मतलब कि जो ट्विस्टिंग मोमेंट लगनी चाहिए जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे बेंडिंग के पहले का जो सेक्शन है वो बेंडिंग के बाद का सेक्शन भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर चेंज तब भी आता है जब आपका ट्रांसवर्स फोर्स लगता है, मतलब कि शियर फोर्स लगेगा, लेकिन शियर फोर्स तो अभी लग ही नहीं रहा है, ठीक है। बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑल लॉन्गिट्यूडनल filament bend in circular arcs. Radius of curvature is large compared with the dimension of cross section, right? Radius of curvature should be large as compared to the dimension of cross section, मतलब कि जब भी आपका डायमेंशन आप बीम ले रहे हो, तो बीम की जो लेंथ होगी, राइट, बीम की, सपोज यहाँ पे आप एक बीम ले रहे हो, ये आपका बीम हो गया, क्लियर। अब बीम की ये जो डायमेंशन होगी, उसके जगह पे यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो ये लेंथ वाली बीम की वो बड़ी होनी चाहिए, वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट। अब बीम के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हर एक पॉइंट अपने हिसाब से फ्री होना चाहिए कि कहाँ पे उसको कौन से पॉइंट पर एक्सपांड होगा और कौन से पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्लियर। वो आप अपने वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए, और किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए नहीं। अब डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग स्ट्रेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। Consider a small length delta x of beam subjected to a simple bending as shown in figure, right? Suppose एक बीम का छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं, छोटा सा लेंथ ले लेते हैं डेल्टा एक्स, मतलब कि डी एक्स का, ठीक है। अब वो पार्ट लेना है, क्यों, क्योंकि हम डेरिवेशन फाइंड करना है, ठीक है, रिलेशन किसका रिलेशन फाइंड करना है, बेंडिंग स्ट्रेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो यहाँ पे प्योर बेंडिंग स्ट्रेस लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, प्योर बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस के अलावा एक भी स्ट्रेस अप्लाई नहीं होना चाहिए। अब आफ्टर अप्लाइंग द बेंडिंग स्ट्रेस, दिस beam is going to be bent, right, this beam is going to be bent, and after taking the length dx, the radius of curvature, after taking the length dx, the radius of curvature you can find as this, right. You have to extend this line, or perpendicular, you have to extend the perpendicular line at the one end of the curve beam, right, and another end you should have also extend the perpendicular line, right.
then the intersection point is the center point of radius of curvature, right? This is O is the center point. Now the radius is axis axis of the beam to the center. Distance of axis of the beam to the center, capital R, is the radius of curvature. Due to the due to the action of bending, the length delta x will be deformed as shown in figure, which is shown in below figure, right? So after deform the beam, we can find the radius of curvature. Due to the decrease in length of the layers above n, right? Means here दिस इज द एन एन, मतलब कि पार्ट ए सी जो है आपका वो ऊपर वाला पार्ट है और बी डी पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। अब जब बैंड होगा तब ए डैश से सी डैश का जो भी लेंथ होगा वो रिड्यूस होगा और ई डैश से डी डैश का जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा, क्लियर। लेकिन जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द बीम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, मतलब कि लेंथ ऑफ एक्सिस एन डैश से एन डैश वो कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। ड्यू टू द डिक्रीज इन लेंथ द लेयर्स अबो एन मतलब कि ए डैश से सी डैश जो लेंथ डिक्रीज हुई है, दिस लेयर विल बी सब्जेक्टेड टू अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, राइट, बिकॉज इट्स compressed. Due to the increase in length of the layer above n, this layer will be subjected to a tensile stress, right? मतलब कि जो एन लाइन जो थी एक्सिस ऑफ द बीम, एक्सिस की बीम की एक्सिस लाइन थी, उसके ऊपर वाला जो पार्ट था ए सी, ठीक है, उसकी लेंथ में क्या हुआ, डिक्रीज हुई। उसकी लेंथ क्या हुई, डिक्रीज हुई। अब डिक्रीज हुई मतलब कि कॉम्प्रेस्ड हुई। अब कॉम्प्रेस हुई तो वहां पे क्या लग रहा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। अब एन लाइन जो थी उसके नीचे वाला जो पार्ट था बी डी, मतलब कि बी डी का चेंज होकर बी डैश डी डैश हुआ। अब उसकी लेंथ क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब उसकी लेंथ इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि वहां पे टेंशन है, तो वहां पे कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। The amount by which a layer increases or decreases in length depends upon the position of the layer with respect to n. Right? This theory of bending is known as the theory of simple bending. मतलब कि बेंडिंग स्ट्रेस अगर अप्लाई हो रहा है बीम के ऊपर तो उसकी जो शेप है, उसकी जो साइड है, या तो फिर आप लेयर बोलो, तो लेयर में क्या चेंज होता है, एक साइड कॉम्प्रेस होती है, दूसरी साइड टेंसाइल होती है। जिस साइड कॉम्प्रेशन होती है वहाँ की लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जहाँ पे भी टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वहाँ पे उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। Derivation of relation between bending stress and radius of curvature. यहाँ पे कैपिटल R is the radius of curvature as we shown in the figure, previous figure. Theta is the angle subjected at O by A dash B dash and C dash D dash produced, right? Y is the distance from the neutral layer, and original length of the layer is EF is equal to delta X is equal to MN is equal to N dash N dash. Why? Because the center axis of the beam is going to be constant always. Length of axis of the beam is going to be constant. From the figure B, N dash, from the figure B here, this is the figure B, right? The N dash is the arc of the circle, right? Because this is the deformation of the beam, right? बीम जो है वो क्या हुआ, डिफॉर्म हुआ, थोड़ा मुड़ गया। अब डिफॉर्म हो गया, ठीक है, बेंड हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये एक पूरा सर्कल बनाएगा इस तरीके से। ये क्या हुआ, एक पूरा सर्कल बनाएगा। अब सर्कल बनाएगा तो ये जो छोटा पार्ट है वो क्या है, सर्कल का पार्ट है, और उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ सर्कल, राइट। मतलब कि एन डैश, मतलब कि एन डैश जो है ये वाला पार्ट वो क्या है, आर्क ऑफ सर्कल, राइट। अब आर्क ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या है, रेडियस इनटू इन एंगल विच इज क्रिएटेड बाय एन आर। सो आर इज द रेडियस एंड एंगल इज द थीटा। सो एन डैश इज टेकन एज r into theta. Change in length of the EF is equal to E dash F dash minus EF, right, is equal to r plus y theta minus r theta, because the original length of the layer is the EF is the delta x. So the change of length of the layer delta F is
r plus y theta minus r theta, right, is equal to y theta. Strain in the layer EF is the increase in length divided by original length. This is the equation of the strain. So the change in length is y theta divided by original length is the r theta. So equation is generated as y divided by r, right? According to the linear elasticity, sigma directly proportional to the strain, or you can say the epsilon is equal to sigma upon E, and we have found that the strain in the layer is equal to y upon r. So the equation is y upon r is equal to sigma upon E. So we can find the stress sigma is equal to E upon r into y, where r is the radius of curvature, which is constant value. capital e capital E is also a constant value, right? So we can write as this stress which is produced in the beam is directly proportional to y, directly proportional to the y, which is distance from the neutral layer, right? Or you can say the centroidal distance, which is known as centroidal distance. ठीक है, मतलब कि फोर्स जहां पे लग रहा है वो, राइट? एज एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सपोज ये एक मेरा बीम है, ये मेरी सेंट्रोइडल एक्सिस है। अगर मेरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलूँगा y, ठीक है? इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलूँगा? y. It's called as the centroidal distance, which is taken as the distance between perpendicular force to the centroidal axis. Y is the distance between perpendicular force to the centroidal axis, right? Derivation of relation between bending stress and radius of curvature. The stress induced in the layer of the beam create compressive and tensile force. As we discuss, this force will have moment about Na, right? The total moment of this force about Na for a section is known as the moment of resistance of that section. Consider the cross section of beam as shown in figure, right? As per this figure, we have taken the cross section of this beam is the length is dy, right? Length is dy. Now the force on the layer is equal to E upon r into y into dA. So the moment of this force taken about Na is taken as the force on the layer multiply y. Why should we have taken this y? Because we are going to taken the moment about Na. We are going to taken the moment about Na के रिस्पेक्ट में हमें क्या करनी है? मोमेंट लेनी है। मतलब कि जहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप जहाँ से मोमेंट ले रहे हो, ठीक है? मतलब कि सपोज यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मोमेंट फाइंड करनी है तो फोर्स मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए? याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होना चाहिए, पैरेलल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सपोज ये लोड जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये पैरेलल डिस्टेंस हो जाता, तो हम ये नहीं ले पाते। तो हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? y। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? y। सो फोर्स इनटू y इज द मोमेंट, राइट? सो फोर्स हमारे पास है E अपॉन आर इंटू वाई इंटू डी ए इंटू वाई. सो द इक्वेशन जनरेटेड एज E अपॉन आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए. So the total moment of the force on the section of the beam is taken as m equal to integral part of E upon r into y square into dA, which is written as E upon r इंटू इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए. अब ये जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में हो गया. ये इक्वेशन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, मतलब कि आई. सो द इक्वेशन विच इज जनरेटेड एज एम इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई, और वी कैन राइट एज एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई आर. अब ई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई तो है ही, तो तीनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं. एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर. And these equations are called as
Euler-Bernoulli's bending equations. Clear? So this is, as of now, we can solve an examples in our next lectures.